Namaste ji, namaste. So now part 2 of our series of discussing the BHU LLB question paper. So we are extracting out the legal section questions and then discussing it here. In the part 1 of this series, we discussed up till question number 1 till 25. So this is the 26th odd question. The election commissioner can be removed by. So mind you, first and foremost, the word chief is missing from here. So be careful with such questions. All right, so the election commissioner, it's not talking about the chief one, it's just talking about the normal, the standard, or you can say the PONA election commissioner. पिछले वीडियो में हमने PONA डिस्कस किया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है जी, और जिनको PONA समझ में ना आए उसकी स्पेलिंग इज दिस PUISNE. So a PONA judge is someone who's not the chief justice but is a judge. Again, not the chief election commissioner but an election commissioner. So the can be removed by the Chief Election Commissioner, Prime Minister, mark it as this, President on the recommendation of the Chief Election Commissioner. This sounds good. You can check, I believe, 324 clause 5 का एक proviso, so that it calls for provided that. वहाँ पे I believe आपको ये line मिल जानी चाहिए. And election commissioner can never be removed by the PM, of course, that's not an option. Chief Justice of India is not an option. ये थोड़ा सा आपको ये इनफैक्ट दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप खुद भी कॉमन सेंस से भी लगाइएगा कि अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को उड़ाने की पावर दे दी तो इट विल बी द चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ दैट पावर आर क्वाइट ग्रेट. तो इसीलिए अगर आपको शायद ना भी पता हो, you can use elimination and perhaps deduce this, but perhaps slightly easier for me, not that much easier for you when you're attempting the question paper for the first time. Read up 324 clause 5, the proviso should be there. It will mention this line. 324 is the article number. Okay, so which of the following are correct about Rajya Sabha? Rajya Sabha. Hanji, typing Rajya Sabha. It is not subject to dissolution. Obviously, Rajya Sabha never gets dissolved, only the Lok Sabha does. Basics of polity 101, very basic stuff. Has a term of 5 years. If it is not getting dissolved, how does it have a term of 5 years? Only the Lok Sabha has. So this is correct, but this isn't. This is certainly not. 1/3 of its members retire after every 2 years. पहले तो देख लेते हैं कि जी A तो correct हो ही गया. So we are playing around with these options, right? We are playing around with these options क्योंकि यहाँ पे तो A mentioned ही नहीं है, तो ये तो मैं पहले ही अपनी लिस्ट में से उड़ा देता हूँ. 1/3 of its members retire after every 2 years. This also is correct. This should be given under Article 84 till 86 के अंदर सारी आपको राज्यसभा लोकसभा की क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा बताई गई होंगी. तो A and C, this becomes the correct answer. Its members shall not be less than 25 years of age. मैंने D कंसिडर भी नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में A तो हमें आना ही आना है, लेकिन अगर हम D कंसिडर भी कर लेते हैं, its members shall not be less than 25 years of age. Check Article 84, it should mention 30 years. Now you can pause the lecture here and in your notes write down the minimum age required for president, vice president, governor, person becoming PM, and is there a minimum age to become a judge of the High Court? So we've got homework for you. थोड़ा सा ढूंढ के रखेंगे, and this is how basically see it's very easy for me to also make a lecture and say कि हाँ इसका correct answer ये, उसका correct answer वो है, but we have to enhance our notes. After all, it's a competitive exam and we have to do better than our competitor, because your marks, they solely do not matter in this exam. What the competitor does determines the cutoff. So we go one step आगे. When we see such a question, then हमारे दिमाग में एक light bulb जलना चाहिए, mentor style, and then we should work more. तो just marking the correct answer तो ऐसे 1 करोड़ lecture already होंगे YouTube पे. This is how we enhance notes. So use these videos that are freely available on YouTube to enhance your notes, and that will perhaps get you across the line, even if you're solely self-preparing and not enrolled in any coaching whatsoever. How many schedules are there in the Constitution of India? ये तो straight रट्टा ही है, इस पे तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं. अब यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा लेक्चर को, and I want you to write all of the 12 schedules from memory.
इन योर नोट्स, ठीक है आपके लिखे होंगे, कोई बात नहीं, एक रफ शीट लीजिए, रफ पेपर लिखिए, फ्रॉम मेमोरी एंड चेक वेदर यू आर एबल टू राइट देम करेक्टली। फिफ्थ में दे क्या दे रखा है, सिक्स में क्या दे रखा है, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 12 ही तो है। मैंने फिफ्थ से शुरू किया तो ऑब्वियसली 1 to 4 भी आप लगा ही लेंगे अपने आप, बट फ्रॉम मेमोरी ये काम कर लेंगे, ऐसे साथ साथ कर लेंगे, देन ओनली विल यू बी एबल टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ दीज लेक्चर्स। जस्ट as Rajendra Sachar committee refers to university reforms, no backwardness among the Muslim community, yes, this is a ratta judicial reform, no election, no. This is again purely a ratta based question, and if you know, or if this is one of those if you know if you don't know types, इसके ऊपर आई थिंक अभी पिटिशन भी लगी है थोड़े टाइम पहले, जो जस्ट चैलेंजिंग समथिंग टू डू विद दिस पिटिशन, बट एनी विच वे लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं तो इट मस्ट हैव to do with something there. Who among the following was the first woman chief justice of a high court in India? Again, this is a ratta based question. Such facts for a law entrance you need to know. This is Justice Leela Seth. But for which high court is my second question to you. I think it's Himachal Pradesh. If I'm mistaken, comment down below. हो सकता है, I'm just memory से. Sometimes I also tend to go wrong. Look it up on Google. Justice Leela Seth. थी तो सही. But of which high court? Check. पंजाब हरियाणा थी, हिमाचल प्रदेश थी, हरियाणा थी, कहाँ की थी, दिल्ली की थी, कहाँ की थी, या किस हाई कोर्ट की रहा था, ठीक है जी। अच्छा, देन इन योर नोट्स वाज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, और लेट अस से फर्स्ट वुमन जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, एंड हैज देयर एवर बीन अ चीफ जस्टिस हु हैज बीन अ फीमेल इन इंडिया? Look those facts up so that you are closing off this question and all other ancillary questions related to it. Okay. When the offers of both president, the offices होगा, I think offices होगा, या तो BHU के क्वेश्चन पेपर में गलती है या हमारी टीम ने कुछ सुटा वुटा मारते हुए ये करे हैं ये टाइपिंग। And the offices of both President and Vice President of India are vacant, then their functions will be discharged by Prime Minister, Home Minister, CJI, Cabinet Secretary. Now the Prime Minister, certainly, let us say that you have no clue about this question. Correct answer I'm sure that a lot of you will know, but we'll just get to that. If अगर आप ऐसे प्रश्न के साथ आप अटकते हैं एग्जाम में, फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हम एलिमिनेशन कैसे यूज कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेकेंट, ना वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट? नाउ प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर को तो हम certainly not, we are not certainly going to be making him the overlord of India. Certainly not the prime minister जाके president के function discharge करना शुरू हो जाएगा। फिर अगर ये provision रखनी होती तो फिर हमने president की post बना क्यों रखी है? होम मिनिस्टर, चलिए एग्जाम में कंफ्यूजन होगी, कर सकते। कैबिनेट सेक्रेटरी, ये तो भैया कभी चुन के भी नहीं आए, इनका तो इलेक्शन नहीं हुआ ना। कैबिनेट सेक्रेटरी इज प्रीटी मच द हाईएस्ट ऑफिस दैट एन आईएएस ऑफिसर कैन परहैप्स ग्रेजुएट टू। कैबिनेट सेक्रेटरी वाले प्रेसिडेंट साहब के टेम्परली भी क्या वहाँ पे कहीं निकट भी नहीं जा सकते, बिकॉज दीज पोस्ट दे आर कमिंग वाया मोस्टली वाया इलेक्शन, समटाइम्स डायरेक्ट समटाइम्स इनडायरेक्ट। देन बच गया ये, जो कि ऑलमोस्ट जब रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट्स वगैरह की बात आती है तो ऑलमोस्ट पति पत्नी है प्रेसिडेंट के साथ। अब ये चीज़, दिस इज द करेक्ट आंसर एनी विच वे, ये चीज़ पे आप रीजनेबल तुक्का मार सकते हैं अगर आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे सोच के। So since the channel's name is TLOI, so it's about teaching, right? So this is the element of teaching, that this is how you can think. If you can start to think, well, great, you can pretty much solve out any competitive exam. अब बात आ रही है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये दे कहाँ रखा है? Is this given in the BERA Act? Is this given in the Constitution? No. There is, I think, the President Discharge of Functions Act or Rule something 1969. तो ऐसे बहुत सारी legislations अलग हैं beyond the constitution जहाँ पे ये सब दे रखा है. This is not given directly anywhere in the constitution, right? So I think it is acts, but I just may be mistaken. 90% is acts, maybe it is rules. Rules then becomes delegated legislation. Any which way, you can look it up. The president, just type in the president discharge of functions 1969 in Google PDF. You will get a PDF where it will say so. Achha, and then associated question is, has there been any instance in India where a CGI has acted as a president? हिदायतुल्लाह जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, देन की किताब भी आती है माई ओन बॉसवेल। तो एक ज़माने में दिस क्वेश्चन यूज्ड टू बी आस्क्ड दैट हु वाज द ऑथर ऑफ माई ओन बॉसवेल।
I'm talking way back in 2014, 2015. All of this style of questions used to come. Amicus curiae. Yeah, Latin में actually इसकी pronunciation is amicus curiae, but we don't say that. बड़ा अजीब सा और सा लगे, so we say just amicus में हम रोक लेते हैं. Amicus is a friend of the court. इससे ज़्यादा आसान प्रश्न आ नहीं सकता और इस पर मैं ज़्यादा कोई टाइम लगा भी नहीं रहा, तो इसलिए लीगल टर्म्स रिवाइज कर लीजिएगा. इस चैनल पे लीगल टर्म्स मैक्सिमम के 2-3 लेक्चर्स पड़े हुए हैं. I believe that should sufficiently do the job. Power to summon the houses of parliament is vested with, again, polity 101. आपको confusion आएगी इधर कि हाँ समन तो स्पीकर ही करेगा, लेकिन नहीं, समन तो प्रेसिडेंट करता है. ओके, याद रखने की बात है. sort of a टेढ़ा question which gets a lot many aspirants in trouble. तो इसमें आप आर्टिकल्स 84 से लेके 89 रिवाइज कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सब कुछ ये वाले आई बिलीव सब कुछ दे दिया जाएगा. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी आर्टिकल्स एट प्रेजेंट, हाउ मेनी चैप्टर्स इन पार्ट 5, सब कुछ रिवाइज करना शुरू कर दीजिए ताकि पॉलिटी स्ट्रॉन्ग होती चली जाए. नाउ इफ़ यू सी, अगर आप पिछले वाला लेक्चर भी आपने फॉलो करा, ये वाला भी, हाउ मच ऑफ डेप्थ ऑफ पॉलिटी डू यू नीड. सो दिस इज ऑल स्टैंडर्ड. DU भी इसी लेवल पे पूछता है एंड BHU भी इसी लेवल पे पूछता है. सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और इनके पुराने आशिक ये हैं, तो इनसे मोहब्बत ज़्यादा है तो नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं. तो इसलिए पॉलिटी अच्छे से स्ट्रेंथन आउट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो मामला अच्छा हो जाएगा. चाहे सिंपल होता है. In case the President of India wants to resign, he shall address his resignation to CJI. आपको कंफ्यूज करेगा अगर आपको ये नहीं पता तो, ठीक है जी. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए था और ये ऑप्शन भी गलत है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हटाइए. दिस इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के शुरू हो रहे हैं 52 से, परहैप्स गोइंग टिल अबाउट 61 में तो इम्पीचमेंट दी हुई है और उसी के अंदर आपको एक लाइन मिल जाएगी उनकी रेजिग्नेशन. अब आपके लिए होमवर्क, सबकी रेजिग्नेशन. PM resigns to who? Vice President resigns to who? Chief Election Commissioner resigns to who? The CJI resigns to who? If they want to resign, ये तो चिट्ठी प्रेसिडेंट की हो गई ना काम. अब आपके लिए होमवर्क, बाकी पोस्ट की रेजिग्नेशन निकाल के रखिए, ठीक है जी. और अपने नोट्स सकुशल बहुत अच्छे बना लीजिए. In which one of the following cases the Supreme Court has recognized the rights of transgenders? No, well, tough question. Lakshmi Narasimhan certainly not. Sriharan certainly not. This is again either you know the answer or you don't. Nalsa versus Union of India. Then the connected judgments are Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation. And then आगे इधर this basically इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी अभी जो लेटेस्ट वाली नवतेज सिंह जोहर, राइट. तो ये सब इसके अंदर होमवर्क फॉर यू. अगेन रीड अप ऑन दीज जजमेंट्स, स्पेशली रीड नालसा की जजमेंट खोलिएगा, यही वाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की, और उसके लास्ट पेज पे चले जाएगा. आई बिलीव द जजेस नेम वाज सीकरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो उन्होंने थोड़ी सी गाइडलाइंस दी हैं, एक बारी उनको देख लीजिएगा क्योंकि और भी प्रश्न बन सकते हैं. DULLB 2020 में बहुत टेढ़ा प्रश्न आया था कि किस केस लॉ में ट्रांसजेंडर्स की कौन सी कैटेगरी वॉज इट, सोशल एंड, हाँ किस कैटेगरी में उनको क्लासीफाई कर दिया गया था, EWS या सोशल एंड other backward classes. So that one more depth, one more step or one more degree you can say was taken. तो ऐसी चीज़ जजमेंट को लेगा और लास्ट पेज पे एक बार स्कैन मार लेगा. दैट इज परहैप्स द रेशियो ऑफ द जजमेंट. रेशियो से याद आया, रेशियो और ऑर्बिटर में क्या फ़र्क होता है. सिंपल सी बातें हैं. सारे प्रश्नों के सारे जवाब इस चैनल पे पड़े हुए हैं. अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड हेल्प वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रेट, एब्सोल्युटली फाइन. होती है सेल्फ प्रिपरेशन, बहुत दुनिया निकालती है सेल्फ प्रिपरेशन से पेपर, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अगेन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल एंड और फिजिकल इनकैपेसिटी. लिखा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में. प्रूव्ड मिसबिहेवियर बाकी पोस्ट के लिए लिखा हुआ है बट नॉट फॉर द प्रेसिडेंट. नाउ व्हाई इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन? आर्टिकल 61 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए यहाँ पे इनके जवाब की प्रोसीजर क्या है इम्पीचमेंट की और वो सब. बट वाई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ टिट्यूलर हेड. ही डजंट हैव मच पावर, ओनली स्टेटस के लिए हमने बिठा रखा है.
because we copied the polity over from the British system. Westminster system में हमने यहाँ पे parliamentary form of government हम ले आए. Presidential form of government नहीं है हमारे यहाँ पे. Parliamentary presidential is in the United States of America. अब अगर everything the president has to do so, he cannot use his power of pardon without the advice of the Home Minister. He generally cannot take any action without the advice of Council of Ministers, which is being headed by the Prime Minister. Now let us say the president decides कि भाई साहब मैं तो नहीं फॉलो कर रहा आपका ये सब, मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन और एडवाइस आ रहा है, ठीक है, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तुम जाओ. तो टेक्निकली स्पीकिंग सरकार ने अपने पास पावर रखी हुई है कि तूने बदतमीजी करी, निकाल देंगे. वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. 37 under article 20 clause 1, so it's always clause, it's not a subsection here. 20 clause 1 ex post facto means law which imposes penalty with retrospective effect. Penalty is nullified. Ex post facto, जैसे वो पोस्ट पेड नंबर होता है, आपकी यूजेज हो गई, अब हम आपको बिल दे देंगे. इट्स अ पोस्ट पेड. पोस्ट फैक्टो और लॉ उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब एग्जिस्ट से EXIST से मत जोड़िएगा, एक्स मतलब इन द पास्ट. लॉ इम्पोजेस पेनल्टी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इसके बारे में अगेन 20 पे तो पूरी बातचीत हमने चैनल पे करी हुई है. ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द प्लेलिस्ट ऑफ DULLB प्रिपरेशन करके है, आई बिलीव. उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. एंड दिस इज इट. सो फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर क्या चक्कर क्या, एंड दिस ओनली अप्लाइज टू क्रिमिनल लॉ बाय द वे. For example, मान लेते हैं, let us say that slapping someone is not an offense as of today. What is the date today? I think it's 5th of August if I'm not mistaken. So 5th of August को ये मान लेते हैं कि आपने किसी को चांटा लगा दिया, and चांटा is not a crime or it's not an offense. And 6th August को पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि जी आज से चांटा ऑफेंस. तो क्या हम आपको आपकी हरकत जो 5 अगस्त वाली है उसके लिए पकड़ सकते हैं? नहीं. That is what 20 clause 1 says, and that's what an ex post facto. So you have basically protection against, or you have right against an ex post facto law. तो वो बाद में हम नहीं पकड़ सकते, बट सिविल केसेस में उल्टा सिनारियो वहाँ पे पकड़ सकते हैं. मैं बाकी ऑप्शंस पढ़ भी नहीं रहा यहाँ से, नो नीड. The minimum age to become a member of the Legislative Council of States should be 30, because राज्यसभा की भी यही है. तो अगर मुझे फॉर श्योर पता भी नहीं है, मैं फिर भी 30 मार्क कर दूँगा. 25 लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती तो बात अलग थी, फिर मैं 25 के बारे में सोचता. और मोस्ट लाइकली इट इज 30. करेक्ट मी एज यूजुअल इफ आई एम रॉन्ग. अ रॉन्गफुल अजम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस कैन बी गॉट विकेटेड बाय. अरे बाप रे, बड़ी ही कॉलोनियल इंग्लिश उन्होंने यूज करी है, कैन बी गॉट विकेटेड. BHU के पेपर में ये लिखा हुआ था. अच्छा, दिस इज अगेन रिट ऑफ क्वो वारंटो. क्वो वारंटो में आप सामने जो पब्लिक ऑफिस में कोई आके बैठा है उसके कागज़ वागज़ चेक कराएंगे, वो कहेगा नहीं हम तो कागज़ नहीं दिखाएंगे, लेकिन दिखाने पड़ेंगे. को वारंटो की रिट ही कुछ ऐसी है. रिट कमांड किन आर्टिकल्स के तहत इशू किए जाते हैं? तो दैट 32 and 226. पॉज द लेक्चर नाउ एंड इन पांचों रिट्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो कृपया करके पढ़ लीजिए. इन पांचों रिट्स के मतलब क्या है? हेबियस कॉर्पस. अच्छा, और हेबियस कॉर्पस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम रेस जुडिकाट. सब आंसर्स आपको इस चैनल पे मोस्टली मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा. Cruelty is a ground for, family law का question. It's certainly a ground for divorce. You will find this under the Hindu Marriage Act, Special Marriage Act. Hindu Marriage Act में section 13 के आसपास दिया होगा. Judicial separation, both divorce and judicial separation, restitution of conjugal rights. Now RCR, if you don't know this option, basically you won't be able to make sense of it. So what are conjugal rights? Homework for you. Find them. But I believe the answer is both divorce and judicial separation. So now what is the difference between a divorce and a judicial separation? Judicial separation में marriage end नहीं होती. You just going to the court and you just tell the court कि मैं अभी अलग रहना चाहता हूँ थोड़े टाइम के लिए, या रहना चाहती हूँ, जैसे आजकल हर कोई रहना चाहती है. I believe this should be the correct answer. We'll just have to confirm it from the Hindu Marriage Act. क्योंकि judicial separation cruelty हो रही है, you are just giving the marriage a chance, so judicial separation should be there. Divorce के अंदर तो it is always a ground. Family law का question. The essentials of a valid custom are, this again is a family law का question, क्योंकि custom आपके define हो जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट में. हर आपका जो पर्सनल लॉ है उसमें कस्टम के बारे में जिक्र किया ही हुआ है अंडर आई बिलीव सेक्शन 2, कभी कभार सेक्शन 3, बट मोस्टली इट इज सेक्शन 2. सेक्शन 2 ऑफ एवरी एक्ट डिफाइंस everything. The essentials of valid custom are duration, continuity and generality.
लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये हटाओ इसको, पहले तो चलो ऑप्शन ही तो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड जनरलिटी। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है, सो वील अगेन, अब हमें पहली बात तो चूज करना है कि हम ड्यूरेशन पे जा रहे हैं या हम लॉन्ग ड्यूरेशन पे जा रहे हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन भाई कस्टम है, कोई प्रथा है, तो हमें लंबे टाइम के लिए मतलब वो चलना चाहिए कस्टम, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले ऑप्शन इसको भी हटा देते हैं। अब बच गए दो, लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी एंड जनरलिटी। तो कंसिस्टेंट रहेगा कस्टम तो ही होगा, और इसके बारे में आपको नरजाट में दे रखा है, कस्टम के लिए यही वैलिड इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास भाई। if even if I didn't know it, this is how I take a reasonable guess, because there is no way in a law entrance that you'll be knowing everything। ये बात तो मतलब आप भूल जाइए, तो क्योंकि लॉ एंडलेस है तो प्रश्न भी एंडलेस आ सकते हैं, बट तैयारी अच्छी रखेंगे तो मतलब मोस्टली पीपल आर एबल टू क्रॉस इन इवन 80%, sometimes you know in some years 90%। this is how you can use elimination। The members of the ICJ shall be elected for, this is standard, either you know it or you don't know it, यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। this is 9 years homework for you। International Criminal Court, ICJ तो International Court of Justice हो गया ना, and is it an organ of the United Nations or not, or is it a specialized agency, is it a related organization, देख के रखेंगे। ICC के जज कितने, एंड ILC के मेंबर, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज कितने साल के लिए होते हैं, एंड ILC के जो मेंबर्स हैं अपने नोट्स में डाल दीजिएगा कि यू हैव टू गूगल, राइट, गूगल थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन 43, द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। खैर अभी मेरे को पिछली बार भी मैंने जब ये सब बोला था गूगल करी, तो लोग आगे गाली देते नीचे कमेंट्स में कि अरे अगर गूगल ही करना है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। खैर छोड़ी, आगे टिप्पणी ना ही करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन। अच्छा जी, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन ना जी ना, सो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम ऑफर। तो एग्जामिनर, ऑफर ऑफर ऑफर, पहली बात तो ये तो सो लॉन्ग हो गई इसकी तो सो लॉन्ग, ऑफर से तो शुरू ही होगा, राइट। ऑफर में एक्सेप्टेंस होगी तो बात आगे बढ़ेगी ना, आपने देवी जी को कॉफ़ी के लिए पूछा, यस करेंगी तभी तो आगे बात करेंगे, तभी ये दो ऑप्शन बिल्कुल साथ में ले रहे हैं। एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन डिसाइड कर लेते हैं कि भैया व्हाट इज दी, यू कैन से दी वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन से वैल्यू तो नहीं, बट हम क्या कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब लेट अस से गाड़ी बेच रहे हैं आप सामने वाले को, तो आप गाड़ी कौन सी देंगे, वो कितने पैसे देगा उसके, सो इट हैज टू बी स्पेसिफिक। सो उसको कहा जाता है जी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हो गई और सब कुछ अगर ठीक है तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अग्रीमेंट बाद में नहीं आएगा, अग्रीमेंट बेसिकली यहाँ पे आएगा, कंसिडरेशन पहले आएगी, तो ये ऑप्शन भी गया सो लॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट, ठीक है जी। और ये तो पहले ही कंसिडरेशन, यहाँ पे एक्सेप्टेंस से पहले कंसिडरेशन कैसे आ रही है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट the part of the constitution, it should be not a part of the constitution। एक गोपाल in case nope, बेरुबारी yes, in बेरुबारी, तो उसके अंदर बेरुबारी के अंदर और क्या बात हुई थी। अच्छा एक और एसोसिएटेड सवाल है, in which case the Supreme Court held that the preamble is a part of the constitution, so it is accepted। केशवानंद भारती, तो बेरुबारी में क्या हुआ था, आर्टिकल 3 and 4 के तहत, नहीं 2 and 3 के तहत rather to be correct, हमारे पास वो तो पावर है दैट वी डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, बट डज दैट पावर इंक्लूड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू सीड टेरिटरी टू अ फॉरेन नेशन। दिस वाज डिसाइडेड इन रेफरेंस, रेफरेंस कहाँ दी जाती है, 143 में, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस टू डिसाइड ऑन अ रेफरेंस हैज गिवन इन 145 इज, आर्टिकल 145 इज 5। तो रेफरेंस थी इन री बेरुबारी केस, रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट कि भाई बताओ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, सो द सुप्रीम कोर्ट सेड कि भाई ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। क्वेश्चन टू यू, डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, सीट के लिए तो क्लियर है मामला, डू वी नीड इट टू एक्वायर। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत पढ़ी हो तो काफ़ी आसान इसका सवाल है।
ज़्यादा तो जवाब है Constitution 86th Amendment 2002 inserted the provision for right to education. अच्छा जी, आर्टिकल 21A की बात हो रही है. Stipulates that the state shall provide free and compulsory education to all children in such manner as the state may by law determine. Great. The age of such children should be. तो पहले आई थिंक अप टिल 6 होता था डीपीएसपी के अंदर, नहीं डीपीएसपी में 6 to 14 होता था, देन इट चेंज. तो इन्होंने डीपीएसपी भी अमेंड करी थी एंड डीपीएसपी में आई थिंक आर्टिकल 45 if नॉट मिस्टेकन, राइट. सो वहाँ पे अप टू 6 कर दिया था और यहाँ पे 6 to 14 ले आया था. दिस बिकेम अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So this is pretty much again a रट्टा बेस्ड क्वेश्चन. आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आपने पिछला भी लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर भी बहुत आर्टिकल्स पूछे हुए थे. तो बीएचयू के लिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब उसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि भाई साहब फिर कौन से आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल करें, कौन कौन से करें, है ना. जवाब दिया हुआ है इस चैनल पे, टाइप कर लीजिएगा यूट्यूब पे, लिस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स TLOI, ऐसा कुछ अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा. मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द कोड्स, आर्टिकल प्रोविजंस. अब नाउ सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ढूंढ लेता हूँ, तो वो सबको पता होता है कि 44 के अंदर दिया हुआ है. सब रट्टा मार के बैठे हैं, तो एग्जामिनर को भी पता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना. तो डी ये हो गया. अब ये देखिएगा 3 ऑप्शन, पहली बात तो ये गए क्योंकि उसे भी पता है दैट दिस इज द इजीएस्ट वन. अब लड़ाई आ जाती है बाकी ऑप्शंस पे, और इन्होंने थोड़ा सा हमारा जिंदगी थोड़ी सी सरल कर रखी है कि सी में 3 4 2 दे रखा है. अब सी क्या है, और ये आपका सी इज 41, या राधा चलिए सी को छोड़ दें. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. अब जैसे मेरे जैसे आदमी को ये पता है कि 39A में ये दिया हुआ है. नाउ 39B, 39C, 39 clause B, clause C are very important because they relate to a number of amendments and a lot of लड़ाई back then. But 39A के अंदर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के अंदर दिया हुआ है, तो ए को मैं ढूंढ लूंगा और 2 यहाँ पे दे रखा है, तो सो लॉन्ग आंख बंद करके मैं ये मार्क कर दूंगा. और मैं यहाँ पे पहले चेक कर लूंगा कि कहीं भाई ये हमारे ए वाले भैया को 2 के साथ किसी और ऑप्शन में तो नहीं मिलाया गया. दैट्स हाउ यू सी इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अदरवाइज आपको ही आता भी होगा बट द वे दैट इट दिस इज स्ट्रक्चर्ड शायद आप गड़बड़ खा जाए. तो कृपया करके जस्ट वॉच आउट फॉर दिस. ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर. उसने आग लगाई, कहते हैं ना तिल्ली दी, धक्का मारा कि जा भाई मर्डर कर किया. बी रिफ्यूज टू डू सो, सामने वाला मना कर दिया. ठीक है जी. ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. 120A के अंदर तो वो अग्रीमेंट करना होता है 2 लोगों के बीच में. अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, अबेटमेंट फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर एंड नो ऑफेंस. शायद आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि अरे ये तो नो ऑफेंस हुआ भाई. क्यों? क्योंकि मर्डर तो कभी हुआ ही नहीं, है ना. बट IPC gives, or rather you attract criminal liability under the IPC for mens rea and actus reus. Now mens rea is intention, your evil mind, your guilty mind which wants to murder in this case, and you are instigating someone. धक्का मार रहे हैं आप जाके, मतलब फिजिकली नहीं, सामने वाले के दिमाग में जहर भर रहे हैं, कान भर रहे हैं कि जाओ उसके मर्डर में. तो आपने एक एक्ट कर ली और आपके पास इंटेंशन भी है, तो आपने अबेटमेंट टू कमिट मर्डर कर दिया. अबेटमेंट फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, आपको क्या पता आगे अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी अबॉलिश्ड बाय. ये आर्टिकल 167 ऑनवर्ड्स आपको स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा. पार्लियामेंट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. तो अभी लास्ट आई थिंक पिछले साल जस्ट बिफोर द फर्स्ट लॉकडाउन आंध्र प्रदेश वांटेड टू abolish its legislative council but parliament didn't sit, so I believe that must have, that resolution by now should have been, गया अब तो खैर भूल गए, अब किसको याद पड़ेगी. Now this is article 167 के आगे आपको आंसर मिल जाएगा. A intends to become a member of state legislature. ठीक है भाई, चुनाव करो और आ जाओ. To become a member of state legislature, contestant must possess certain qualifications. Great. Which of the following is not a necessary qualification to become a member of the state legislature? 25 years of age. ये तो ठीक ही होना चाहिए क्योंकि लोकसभा की भी मिनिमम एज यही है. LLB डिग्री नहीं भैया, LLB डिग्री तो certainly is not क्वालिफिकेशन. LLB डिग्री हो गई तो पूरी दुनिया ने BCI जानी, हम कोचिंग वालों का बिजनेस विल गो 10 times. द ऑब्जेक्ट ऑफ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ, अरे बाप रे ये क्या पूछ रहा है, तो क्रिमिनोलॉजी का क्वेश्चन पूछ रहा है. रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. रेट्रीब्यूटिव मतलब सामने वाला शुड ऑल्सो सफर लाइक हिज विक्टिम हैज सफर्ड. सो टीच लेसन टू द रॉन्ग डूअर, टेक रिवेंज अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, console the victim's feeling. This is certainly not. Restore the loss. This is certainly not the case. अब बच गए 2. Sorry, I had to sneeze, so I just had to make an edit. So teach lesson to the wrongdoer, take revenge against the wrongdoer. This is
very dicey question, because you can argue for this as well, you can argue for this as well, but I believe that this should be the correct one, because we are making him suffer. Retribution any which way is sort of a revenge, so we are going to be taking revenge against the wrongdoer. So the objective of retributive theory of punishment is, मैं बताता हूँ तुम, because we're teaching a lesson, वो तो general theory of punishment भी आप जेल जूल तो भेज ही रहे हैं, you're teaching a lesson through him or her, taking revenge against the wrongdoer should be the correct one. ठीक है जी. And this sums up 50 questions. We'll keep on solving more and more of pretty much each and every law entrance. Wishing you all the very best. Stay safe and prepare well. Use these videos to your full advantage, because these contain a lot many tips and tricks that will really aid you in your self preparation. ठीक है जी? Okay, bye.